Today we are going to see the most important topic of the Java, that is JVM architecture. Once you learn the JVM architecture, you will be able to understand how the memory will be managed, how the data will be stored into the JVM while we are doing any Java program. Okay, so all the memory management and everything, that is we are going to see here into the JVM architecture. So JVM architecture basically, or JVM architecture is divided into three different parts, 3 to 4 different parts. Okay, but what is mean by JVM? JVM stands for Java Virtual Machine. Okay, JVM stands for Java Virtual Machine. Virtual machine, as the name suggests, it is a virtually executing. So it acts as a runtime. Okay, it acts as runtime engine, runtime engine to run our Java applications. So our Java applications executed using Java Virtual Machine, that is JVM. It works as a runtime engine. It is the only one who actually calls the main method. So we write the main method in our code, and the main method will be called by the JVM itself to execute our Java application. As we have seen, JVM is a part of JRE, right? It is a part of JRE. We have already seen this part in the last session. It is a part of JRE. And as we know that Java application works on the VORA concept, that is write one, run anywhere. So we can develop Java code on one system and can execute on any Java enabled system without any adjustment. How that is possible? With the help of JVM. Okay, this is all because of JVM, because we have to install the JVM on your system and then we can execute these programs, these applications on any system, any platform. Okay, so with the help of JVM, we can write once and run anywhere. This concept is basically telling you to whatever the adjustment we are doing for our Java application, that is because of JVM. Okay, so when we compile our program, so when we write our program, that program has a .java extension. Okay, we are going to see this practically also, but first understand. So whenever we are writing any code, we are giving the name of that file is .java. Okay, so that this file will be considered as Java file, source file. When we compile that Java file, it creates one class file, .class file. Okay, so .class file will be created. So this .class file contains bytecode. Okay, it contains bytecode. It is also known as bytecode file. Okay, so this is the class names, and Java file name and .class file name will be same. Okay, when we compile this .java file, .class file will be created with the same name as this Java file. Okay, same name रहेगा, उसमें कुछ भी changes नहीं रहेंगे. .java file का जो भी name है, जो class हमने दिया है, same name से आपका .class file भी create होता है, generate होता है कंपाइलर के थ्रू. ठीक है, तो कंपाइलर क्या होता है वो हम बाद में देखने वाले हैं. सो इट इज, ये सारा जो कुछ है वो आपका एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर के थ्रू. ओके, तो जब ये .class फाइल जनरेट होती है, .class फाइल को ही हम एग्जीक्यूट करते हैं. वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम यूजिंग .class फाइल. .class फाइल ही जो है वो एक्चुअली आप कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो ये वोरा कंसेप्ट जो है वो बेसिकली इस .class फाइल के लिए है, जहाँ पे आपको सोर्स कोड की जरूरत नहीं है. मतलब आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसके स्टेप्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हो. जैसे कि नॉर्मली कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो उसका .exe फाइल, .apk फाइल वगैरह डाउनलोड होता है, राइट. सो उसको डबल क्लिक करने के बाद आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है एप्लीकेशन का. वैसे ही ये .class फाइल हम कोई भी सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो .class फाइल जो है वो आपके इस JVM में बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है. ठीक है, ये .class फाइल जो है आपका मेन इनपुट रहेगा JVM को. ठीक है, सो .class फाइल क्रिएशन के बाद ही आपका JVM का वर्क स्टार्ट होता है.
ये डॉट क्लास फाइल आपके वेरियस स्टेजेस के थ्रू जाता है एंड आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है वो सारे स्टेप्स ही डिस्क्राइब करते हैं आपके जेवीएम आर्किटेक्चर को। यही पूरा आपका टुगेदर ये डिस्क्राइब करेगा होल जेवीएम। एक्चुअली जेवीएम क्या है वो ये ही आपको एक्सप्लेन करता है। तो बेसिकली जो डॉट क्लास फाइल कंपाइलर में कंपाइलर जो क्रिएट करता है उस डॉट क्लास फाइल को ही हम इनपुट, एक्चुअली एग्जीक्यूशन के लिए इनपुट दिया जाता है जेवीएम को, एंड वहां से जो डॉट क्लास फाइल आपकी पूरे जेवीएम में जो जो स्टेप्स से गुजरती है दैट इज नथिंग बट द जेवीएम आर्किटेक्चर, एंड उसके बाद मैम हम एग्जीक्यूट होता है। हाँ बोलो। मुझे क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली, डॉट क्लास फाइल मतलब क्या हो गया? डॉट डॉट क्लास जावा और या डॉट क्लास फाइल मतलब? ठीक है, तो एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, या अभी जो मैंने पहले से एक्सप्लेन किया वो तो समझ में आ गया कि जेवीएम क्या है। हाँ। जावा वर्चुअल मशीन, इट इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, जो पार्ट है जेआरई का, जहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम्स का। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। वोरा कंसेप्ट जो है वो पूरा बेस्ड है हमारा जेवीएम की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम जेवीएम अलग अलग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड आपका प्रोग्राम जो है अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, मतलब जो कोडिंग करते हैं उस फाइल का नेम हम हमेशा डॉट जावा से एक्सटेंशन देते हैं। जैसे आप डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट करते हो जो टेक्स्ट फाइल होता है, राइट, डॉट टीएक्सटी रहता है, डॉट डॉकएक्स रहता है। डॉकएक्स फाइल क्या होता है आपका? डॉक्यूमेंटेड फाइल होता अच्छा, है। तो ये डॉट क्लास वगैरह वैसे ही होते हैं जैसे अपन HTML के वगैरह बाद में लगाते हैं, HTML की डॉक टाइप ये करने के लिए। करके हम एंड एक्सटेंशन देते हैं, फाइल का एक्सटेंशन जो आपको ओके ओके। एक्सप्लेन करता है कि कौन से टाइप का फाइल आपने लिखा है। करेक्ट, राइट। ये यस तो मैम। हमने नॉर्मल हम यूज करते हैं। डॉक एक्स जो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है, डॉट टीएक्सटी जो है वो आप नोटपैड के लिए यूज करते हो, राइट, एंड एचटीएमएल जो हम एचटीएमएल फाइल के लिए बनाते हैं। करेक्ट। वैसे ही जैसे हम कोई जावा का सोर्स कोड फाइल बनाते हैं जहां पे हम कोड लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन हमें देना होता है डॉट जावा। ओके, उस फाइल का एक्सटेंशन होता है हमारा डॉट जावा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नेम दिया है हेलो वर्ल्ड, ये मैंने प्रोग्राम किया है डॉट जावा, ये मेरा फाइल है, ठीक है। एक्चुअली इसका काम ये हम सिर्फ सोर्स कोड लिखने के लिए यूज करते हैं। सोर्स कोड मतलब क्या? आपका कोड, जैसे आप एचटीएमएल में कोड लिखते हो, राइट, वैसे ही इसमें भी हम कोड लिखेंगे। जब इस डॉट जावा फाइल को हम कंपाइल करते, कंपाइलर का काम डॉट जावा फाइल कैसे लिखनी है, डॉट क्लास फाइल कैसे क्रिएट होती है, ये सारा पार्ट हम बाद में देखने वाले हैं। जस्ट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि जो फाइल हम बनाते हैं सोर्स कोड फाइल, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। इसको कंपाइल करने के बाद ये डॉट जावा फाइल कंपाइल होता है, ठीक है। आफ्टर कंपाइलेशन ये फाइल डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है, ठीक है। कंपाइलर डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है, डॉट क्लास इज ए एक्सटेंशन, ठीक है। तो जो हमने हेलो वर्ल्ड लिया है तो सेम हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है कंपाइलर के थ्रू। ये कंपाइलर का काम है। जो हम सोर्स कोड देते हैं उस सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद सेम फाइल नेम से वो सिर्फ एक्सटेंशन डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। सो ये डॉट क्लास फाइल एक्चुअली इसमें होता है बाइट कोड, बिट्स बाइट्स पता है ना आपको, बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है। तो इसमें होता है बाइट कोड, ठीक है। तो ये डॉट क्लास फाइल जो हमारी क्रिएट होती है कंपाइलर के थ्रू, ये आपकी कोई भी सिस्टम के ऊपर आप इसको लेके जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे हम EXE फाइल्स डाउनलोड करते हैं, राइट, या फिर डॉट APK फाइल्स डाउनलोड करते हैं एंड उसको डबल क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है, राइट। सिमिलरली इसको भी आप डायरेक्टली ये डॉट क्लास फाइल किसी भी जेवीएम पे आप डाल सकते हो एंड उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको सोर्स कोड फाइल की डॉट जावा फाइल की जरूरत नहीं रहती है, ओके। तो ये डॉट क्लास फाइल जो है वो एक्चुअली आपका वोरा कंसेप्ट इसकी वजह से है। आप इसको एक ही बार सोर्स कोड आप एक ही बार लिखोगे एंड जहां चाहिए वहां पे आप सिर्फ ये डॉट क्लास फाइल आप ऐड करो आपके जेवीएम में, आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको हर बार ये सोर्स कोड डॉट जावा फाइल की जरूरत नहीं रहती है।
सिर्फ बाइट कोड आप लेके जाओगे कोई भी सिस्टम के ऊपर तो उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका डॉट जावा सोर्स कोड फाइल, एंड कंपाइलर जो क्रिएट करता है डॉट क्लास फाइल विच इज अ बाइट कोड, ठीक है। नाउ जो ये बाइट कोड है, जो ये डॉट क्लास फाइल है, वो आपकी एक्चुअली इनपुट रहती है जेवीएम को। क्यों? क्योंकि इस डॉट क्लास फाइल को ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसी डॉट क्लास फाइल में जो भी पार्ट है उसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। दैट्स वाई ये डॉट क्लास फाइल आपके जेवीएम में अलग अलग स्टेजेस में एग्जीक्यूशन के लिए जाती है, अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स यूज करती है, एंड वही स्टेप्स हमारा जेवीएम आर्किटेक्चर बताता है। या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि ये पूरा जो है वो आपका जेवीएम एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअली ये डॉट क्लास फाइल कौन से स्टेजेस से जा रही है, वहां पे क्या क्या काम कर रही है, उसके हिसाब से आपका जेवीएम बताता है, ठीक है। सो जेवीएम ये काम करता है आपके डॉट क्लास फाइल को, आपके बाइट कोड को एग्जीक्यूशन करने का, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एनी डाउट? नो मैम। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये डॉट क्लास फाइल्स हमने दिए इनपुट इसको जेवीएम को, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। सो यहाँ से जेवीएम आर्किटेक्चर का काम स्टार्ट होता है। तो जेवीएम आर्किटेक्चर आपके 4 to 5 डिफरेंट पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है, ठीक है। मेनली तो 3 ही पार्ट्स है, इन दोनों को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, तो ये डॉट क्लास फाइल्स मेन हमारी इनपुट जाएगी सबसे पहले क्लास लोडर सब सिस्टम को, सेकेंड है रन टाइम डेटा एरियाज को, एंड थर्ड है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन। ये 3 मेन पार्ट्स है जहाँ पे हमारा एक्चुअली काम होता है। ये डॉट क्लास फाइल से डेटा स्टोर होता है, अलग अलग मेथड्स में अलग अलग डेटा कैसे कैसे स्टोर होता है, कैसे कैसे एग्जीक्यूशन होता है, वो सब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 मेन पार्ट्स है that is responsible for 3 activities. First, class loader subsystem है, second is runtime data areas है, third one is execution engine है, ठीक है। तो एक हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले है हमारा क्लास लोडर सबसिस्टम। क्लास लोडर सबसिस्टम में लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन, ये 3 पार्ट्स, 3 चीजें होती है, ये 3 एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अलग अलग लोडिंग में क्या होता है, लिंकिंग में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे अभी। सो क्लास लोडर सबसिस्टम में 3 एक्टिविटीज होती है, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन। लोडिंग में 3 टाइप के लोडर्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम है उसको लोड करने के लिए 3 टाइप के अलग अलग लोडर्स होते हैं। एक बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होता है, एक्सटेंशन क्लास लोडर होता है, एंड एप्लीकेशन क्लास लोडर होता है। तो इसको हम एक देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास लोडर सबसिस्टम क्या है? तो क्लास लोडर सबसिस्टम आपका जो डॉट क्लास फाइल है, उस डॉट क्लास फाइल को रीड करने के लिए और उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी डेटा जनरेट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जावा's डायनेमिक क्लास लोडिंग फंक्शनैलिटी इज हैंडल्ड बाय द क्लास लोडर सबसिस्टम। इसको पहले सबसे पहले आपका क्लास फाइल आएगा, यहाँ पे क्लास फाइल में डेटा लोड होगा, लिंक होगा, ये सब कुछ हम इसी में करेंगे। एंड इट इनिशियलाइजेस द क्लास फाइल व्हेन इट रेफर्स टू द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम एट रन टाइम नॉट कंपाइल टाइम, ठीक है। तो जब हम पहली बार इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले जब सबसे पहले हम उस प्रोग्राम को एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते, तब आपका ये क्लास लोडर सबसिस्टम काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले है हमारा लोडिंग पार्ट। सो जैसे मैंने बोला, लोडिंग में 3 अलग अलग लोडर्स है, बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके क्लासेस को लोड करने के लिए जो बूटस्ट्रैप क्लास पाथ में है। नथिंग बट rt.jar करके एक फाइल होती है, jar इज नथिंग बट जावा आर्चिव फाइल, जैसे आप जिप बनाते हो, ठीक है। तो वैसे ही rt.jar जावा के आर्चिव फाइल को हम एक्सटेंशन देते हैं .jar, ठीक है। तो rt.jar करके एक फाइल होती है, जार फाइल, जिसमें बहुत सारे क्लासेस रहेंगे, डॉट क्लास फाइल्स रहेंगे,
वो डॉट क्लास फाइल को लोड करने के लिए बूटस्ट्रैप क्लास लोडर हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको दी जाती है इस क्लास लोडर को, क्योंकि इसी में आपके सारे लाइब्रेरी फाइल्स रहेंगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर बेसिकली आपके लाइब्रेरी फाइल्स लोड करता है। अगर आपने जेडीके इंस्टॉलेशन किया है, जैसे मैंने बोला था, वैसे आपका ये पाथ रहेगा जहाँ पे आपने जेडीके इंस्टॉल किया है, उस जेडीके के अंदर जेआरई करके एक फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर में लिब करके एक फोल्डर रहेगा, एंड उस लिब में हम .jar फाइल्स को जो भी रहेंगे वहां से सारे .jar फाइल्स जो है वो आपके ये बूटस्ट्रैप क्लास लोडर लोड करेगा जेवीएम में। ठीक है, ये सबसे पहले होता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम। सेकेंड है एक्सटेंशन क्लास लोडर। एक्सटेंशन क्लास लोडर रेस्पॉन्सिबल होता है आपके जो भी क्लासेस है, जो क्लासेस लोड करने हैं वो क्लासेस होते हैं जहाँ पे वो इनसाइड EXT फोल्डर में होते हैं। EXT फोल्डर कहाँ पे है? ये EXT फोल्डर तो सेम जेडीके JRE लिब फोल्डर में EXT करके एक फोल्डर होता है, उस EXT में सारे डॉट क्लास फाइल्स रहते हैं, वो सारे डॉट क्लास फाइल्स एक्सटेंशन क्लास लोडर लोड करता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक्सटेंशन क्लास लोडर ये सारे फाइल्स, ये डॉट क्लास फाइल्स सारे लोड करेगा। ठीक है, थर्ड वन इज एप्लीकेशन क्लास लोडर। हमारा जो एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं, ठीक है, जो डेवलपर यूज करते हैं, डेवलपर जो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे एप्लीकेशन लेवल क्लास पार्ट पे वो लोड होता है। तो एप्लीकेशन क्लास लोडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको लोड करने के लिए, जहाँ पे हम एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, राइट, उसी में से हम अभी जरूरत नहीं है, मैंने आपको कल बोला था, लास्ट टाइम बोला था लास्ट सेशन में, या अभी हमें उसको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किए हैं तो इस एनवायरमेंट वेरिएबल्स की क्लास पाथ के थ्रू आपका एप्लीकेशन क्लास लोडर सारे एप्लीकेशन लेवल क्लास पर लोड करेगा, मतलब सारे डॉट क्लास फाइल्स लोड करेगा। तो जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसको लोड करने के लिए एप्लीकेशन क्लास लोडर वर्क करता है। ठीक है, जब एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसके सारे डॉट क्लास फाइल्स को लोड करने के लिए एप्लीकेशन क्लास लोडर ही वर्क करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें लोडिंग में होता क्या क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि ये सारे बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, एप्लीकेशन क्लास लोडर ये सब कुछ लोड करता है, बट वो लोड क्या क्या करता है? ठीक है, तो वो लोड क्या क्या करता है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो एक्सटेंशन क्लास सॉरी, आपका क्लास लोडर सबसिस्टम जो है लोडिंग में सबसे पहले आपका लोड करता है डेटा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम, फुल्ली क्वालिफाइड नेम, किसका नेम? जो लोड कर रहे हैं हम क्लास, नेम ऑफ क्लास। ठीक है, फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ क्लास, एंड इसका अगर कोई इमीडिएट पेरेंट है, इमीडिएट पेरेंट है तो उसका नेम, इमीडिएट पेरेंट का क्लास नेम। ठीक है, अगर ये डॉट क्लास फाइल जो हम लोड कर रहे हैं उस फाइल को हम रिलेट कैसे करेंगे? ये क्लास फाइल है, मतलब उसमें क्लास लिखा है और इंटरफेस लिखा है और इनम लिखा है, दैट इज नथिंग बट टाइप ऑफ दैट डॉट क्लास फाइल। ठीक है, तो इसमें से क्या सिलेक्टेड है, कौन सा है, वो हम यहाँ पे आपका लोड होता है। ठीक है, उसके बाद मॉडिफायर्स लोड होते हैं। मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स, वेरिएबल्स एंड मेथड्स इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ लोड होता है आपका। ये डेटा कहाँ पे लोड होता है? तो ये लोड होता है सारा डेटा आपका मेथड एरिया में। ठीक है, ये डेटा मेथड एरिया में स्टोर होता है। मेथड एरिया क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा आपका। ठीक है, बट ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि फुल्ली क्वालिफाइड नेम, इमीडिएट पेरेंट, क्लास, इंटरफेस, इनम, मॉडिफायर्स, वेरिएबल्स, मेथड इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा सा आपको अभी इस स्टेज पे थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है अभी तक हमारे हुए नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको डिटेल में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट जेवीएम आर्किटेक्चर आपको पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ डेटा जो है वो आपका मेथड एरिया में स्टोर होता है। तो इंफॉर्मेशन मेथड एरिया में क्या क्या स्टोर करेगा? फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ अ क्लास, मतलब जो आपका नेम आपने दिया है क्लास को
वो क्लास नेम, क्वालिफाइड नेम जो है वो स्टोर करेगा। अगर उसका कोई पेरेंट क्लास है तो वो स्टोर करेगा। उसमें कौन से टाइप का फाइल हमने बनाया है, क्लास फाइल है, इंटरफेस है या इनम लिखा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, मतलब स्टोर करेंगे। मॉडिफायर्स कौन से हैं, उसके वेरिएबल्स क्या क्या हमने लिखे हैं उस कोड में, या मेथड इंफॉर्मेशन जो भी हमने मेथड्स लिखे हैं वो क्या क्या है, वो सब कुछ आपका मेथड एरिया में क्लास लोडर सब सिस्टम लोड करता है। ठीक है, ये लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो फाइल है, इस फाइल को हम जेवीएम क्रिएट करेगा। ये तो मेथड एरिया में डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, मेथड एरिया में डेटा स्टोर करने के बाद आपका जेवीएम क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्लास नाम से एक क्लास है हमारा, प्री डिफाइंड क्लास है जावा में। ठीक है, क्लास नाम का एक ऑलरेडी क्लास डिफाइन किया गया है जावा में। ठीक है, सो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जेवीएम। क्यों करेगा, ये कहाँ पे करेगा, पहले तो ये ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा हिप मेमोरी में, हिप मेमोरी में। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, क्लास स्टोर इनटू हिप मेमोरी। ठीक है, ये स्टोरेज होगा हिप मेमोरी में। तो ये क्लास हमारा प्री डिफाइंड है। ये किस टाइप के लिए क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट क्लास का, तो कौन से क्लास जो हमने क्लास लिखा है उस फाइल का कौन सा टाइप है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ये जेवीएम सब कुछ खुद से करता है। ठीक है, एंड ये हिप मेमोरी में ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। ठीक है, तो जो ये बेसिक वर्किंग है क्लास लोडर सबसिस्टम का, ये बेसिक वर्किंग करता है क्लास लोडर सबसिस्टम। फिर लोडिंग में जो हमने देखा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, बेसिकली ये बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट जेवीएम के साथ अवेलेबल होता है। एंड इसको हम एपीआई क्लासेस को लोड करने के लिए यूज करते हैं। एपीआई मतलब जो हमारा ये लिब में जितने भी फाइल्स है, डॉट जार फाइल्स में जितने भी डॉट जार फाइल्स है, डॉट क्लास फाइल्स है, उसको लोड करने के लिए बूटस्ट्रैप क्लास लोडर काम करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जावा का जो कोर लाइब्रेरी फाइल्स है या फिर एपीआई फाइल्स है, उन सबको एग्जीक्यूशन और लोड करने के लिए बूटस्ट्रैप क्लास लोडर काम करता है। सेकेंड है आपका हाँ, पहले ये बूटस्ट्रैप क्लास लोडर C++ में डेवलप किया गया था। ठीक है, बट अभी जावा में है। पहले C++ में ही इसको डेवलप किया गया था क्लास लोडर को, बट अभी जावा में ऑलरेडी डेवलप किया गया है। मतलब ये भी क्लास लोडर सबसिस्टम जो है, सॉरी क्लास लोडर जो है वो कोड ही है, वो काम करता है जो हमने अभी नाउअडेज इट इज डेवलप्ड इन जावा। ठीक है, पहले C++ में था। सेकेंड है आपका एक्सटेंशन क्लास लोडर, जो मैंने अभी बताया आपको कि EXT फोल्डर से जितने भी डॉट क्लास फाइल से उसको लोड करने के लिए ये काम करता है। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का चाइल्ड है ये एक्सटेंशन क्लास लोडर। ठीक है, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का चाइल्ड है। थर्ड है एप्लीकेशन क्लास लोडर, जो एक्सटेंशन क्लास लोडर का चाइल्ड है। सबसे पहले होता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, उसका चाइल्ड है एक्सटेंशन क्लास लोडर, एंड एक्सटेंशन क्लास लोडर का चाइल्ड है आपका एप्लीकेशन क्लास लोडर। एप्लीकेशन क्लास लोडर क्या करता है, जैसे मैंने बोला आपको कि ये क्लास पाथ से क्लासेस को लोड करेगा, एंड जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, आपकी लोकेशन है जहां पे आपने एप्लीकेशन को स्टोर किया है, उसको हम एप्लीकेशन क्लास पाथ बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल क्लास पाथ मतलब जहां पे हम एक्चुअली आपका प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सेव करेंगे। अगर आपने इक्लिप्स से किया है कल डाउनलोड, ठीक है, तो इक्लिप्स के साथ आपने वर्कस्पेस भी आपने किया होगा, राइट। तो अगर वर्कस्पेस आपका जनरेटेड है, दैट मीन्स क्रिएटेड है, दैट वर्कस्पेस इज नथिंग बट योर वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, वर्किंग लोकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन स्टोर करोगे वो आपका उस वर्कस्पेस के लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, तो वो वर्कस्पेस आपका एप्लीकेशन लेवल क्लास पाथ रहेगा। ठीक है, या फिर जहां पे हम एक्चुअली आपका कोड स्टोर करते हैं, एप्लीकेशन स्टोर करते हैं, उस डायरेक्टरी को एप्लीकेशन क्लास पाथ बोलते हैं। ठीक है,
ये एप्लीकेशन लेवल क्लास पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल्स को यूज करता है, बट एनवायरमेंट वेरिएबल्स अभी हमें जरूरत नहीं है इन करने की, लिखने की। अगर लगा तो हम करेंगे, दो दो एनवायरमेंट वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये क्लास, जो क्लास लोडर है, ये भी जावा में इम्प्लीमेंटेड है अभी, पहले नहीं था, अभी जावा में इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो ये सारे क्लास लोडर्स जो है, ये एक डेलीगेशन हायरार्की एल्गोरिदम फॉलो करते हैं क्लास फाइल को लोड करने के लिए। वो डेलीगेशन हायरार्की एल्गोरिदम है क्या, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी डॉट क्लास फाइल आएगी क्लास लोडर सबसिस्टम के पास। क्लास लोडर सबसिस्टम आपका रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन क्लास लोडर को, क्योंकि ये सबसे छोटा चाइल्ड चाइल्ड है, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन क्लास लोडर को आएगी। इस एप्लीकेशन क्लास लोडर को ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, डेलीगेट करेगा, मतलब ट्रांसफर करेगा। कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, एक्सटेंशन क्लास लोडर को। एक्सटेंशन क्लास लोडर भी ये डेलीगेट करेगा रिक्वेस्ट बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को। तो सबसे पहले आपका बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्लास फाइल लोड करने के लिए आएगा। तो एग्जैक्टली क्या करता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, इस जो भी आपकी डॉट क्लास फाइल हमने यहाँ पे दी है, सपोज हमारी डॉट क्लास फाइल है, यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ, मैंने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल मैंने दी है। हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल की रिक्वेस्ट पहले एप्लीकेशन क्लास लोडर को जाएगी, वो डेलीगेट करेगा एक्सटेंशन क्लास लोडर को, वो वही सेम रिक्वेस्ट डेलीगेट करेगा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या करेगा, ये सेम फाइल हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल सर्च करेगा बूटस्ट्रैप क्लास पाथ में। बूटस्ट्रैप क्लास पाथ में मतलब आपके जावा हो jrelib.rt.jar फाइल। ये तो हमने हमने लिखा हुआ फाइल है, ठीक है, यूजर डिफाइंड फाइल है। तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा बूटस्ट्रैप क्लास पाथ में। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप क्लास पाथ में आपके कोर जावा रिलेटेड जितने भी एपीआई क्लास फाइल्स होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो ये डॉट क्लास फाइल जब इनपुट आएगा क्लास लोडर सबसिस्टम को, जेवीएम को, तो वो सबसे पहले बूटस्ट्रैप क्लास पाथ में सर्च करेगा। अगर यहाँ पे मिला नहीं ये सेम डॉट क्लास फाइल, तो वो ये रिक्वेस्ट फिर से डेलीगेट करता है एक्सटेंशन क्लास लोडर को। तो एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या करेगा, उसका जो पाथ है, क्लास पाथ है, जैसे कि jrelib.ext फोल्डर, यह इस पाथ में वो ये सेम फाइल सर्च करेगा। इस लोकेशन पे भी अगर उसको ये फाइल नहीं मिला, तो एक्सटेंशन क्लास लोडर सेम रिक्वेस्ट डेलीगेट करेगा एप्लीकेशन क्लास लोडर। एप्लीकेशन क्लास लोडर क्या करेगा, जो आपका एप्लीकेशन लेवल क्लास पाथ है, जहाँ पे हमने जो वर्किंग डायरेक्टरी है, जहाँ पे हमने एप्लीकेशन बनाया है, उसमें ये सर्च करेगा, ठीक है। अगर नहीं मिला, इसमें भी फाइल, ये डॉट क्लास फाइल नहीं मिला, जनरेट हुआ, तो वो एक आपको एक्सेप्शन थ्रो करता है, दैट इज क्लास नॉट फाउंड, ठीक है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, या फिर नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर शो करेगा, ठीक है। अगर ये डॉट क्लास फाइल इस एप्लीकेशन क्लास पाथ में भी नहीं मिला, मतलब इन तीनों क्लास पाथ में, इन तीनों वर्किंग डायरेक्टरी में अगर ये डॉट क्लास फाइल नहीं मिला, तो वो आप जेवीएम आपको इन दोनों में से एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, या फिर नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर आएगा, ठीक है। तो जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि डॉट जावा टू डॉट क्लास फाइल कन्वर्जन होता है कंपाइलर के थ्रू, तो वो सेम वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होता है, मतलब जहाँ पे आप डॉट जावा फाइल सेव करते हो, उसी सेम वर्किंग डायरेक्टरी में आपका ये डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है। दैट इज वाई अगर ये हमने बनाया हुआ डॉट क्लास फाइल है, मतलब डॉट जावा फाइल है, कंपाइलेशन हुआ है, तो वो डॉट क्लास फाइल आपके एप्लीकेशन क्लास पाथ में अवेलेबल होना चाहिए। बट तीनों पाथ में अगर नहीं है, तो वो आप जेवीएम आपको इन दोनों में से एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो ये प्रोसेस आपकी इस तरीके से होती है, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन एल्गोरिदम। इसकी जगह पे सपोज जो प्री डिफाइंड फाइल है, सपोज स्ट्रिंग नाम की एक फाइल है, स्ट्रिंग डॉट क्लास,
ठीक है। स्ट्रिंग डॉट जावा एक सोर्स कोड है और उसका एक क्लास फाइल है। ये प्री डिफाइंड है, लाइब्रेरी फाइल है। अगर ये इनपुट आ रहा है आपके क्लास लोडर सबसिस्टम को, तो ये फाइल जो है वो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर में ही, बूटस्ट्रैप क्लास क्लास में ही मिल जाएगी, क्योंकि ये लाइब्रेरी फाइल है, ये प्री डिफाइंड फाइल है। ठीक है, तो वो हमारे जेडीके के इंस्टॉलेशन के साथ आती है, तो ये आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो जिस पाथ में वो फाइल मिलती है वहीं से वो लोड कर लेता है जेवीएम में। अगर नहीं मिली डॉट क्लास फाइल, अगर ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ही आपको इन दोनों में से एक एक्सेप्शन या एरर आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक लोडिंग पार्ट क्लियर हुआ? एनी डाउट इन लोडिंग? क्लास लोडर सब सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट हेलो लोडिंग है। हाँ बोलो। मैम। मैम का आवाज अटक रहा था एक्चुअली अभी रिसेंटली। यस पीयूष। मैम आपका आवाज अटक रहा था अभी रिसेंटली। आप पिछले 10 to 15 सेकेंड्स का रिपीट कीजिए थोड़ा सा। ओके, कहाँ तक आपका समझ में आया वो बताओ। ये डेलीगेशन का मैंने एक्सप्लेन किया, वो समझ में आया आपको? हाँ, डेलीगेशन स्ट्रिंग्स हो गया था एंड उसके बाद का हो रहा था। ओके, तो हमने स्ट्रिंग डॉट क्लास फाइल, अगर आपके क्लास लोडर सबसिस्टम को जेवीएम को इनपुट आ रहा है, तो ये फाइल हमारी ऑलरेडी लाइब्रेरी फाइल है। जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ये फाइल ऑलरेडी वहां पे होती है आपके क्लास पाथ में। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी फाइल है। इसकी वजह से जब आपका रिक्वेस्ट क्लास लोडर सबसिस्टम के थ्रू बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को डेलीगेट होगा, तो वो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर में ही आपको वो क्लास पाथ जो है बूटस्ट्रैप का, जहाँ पे JRE-lib फोल्डर है, उस फोल्डर में ही ये स्ट्रिंग डॉट क्लास फाइल मिल जाएगी। तो इमीडिएटली इट विल स्टॉप। ठीक है, तो ये सर्च करना बाकी के जगह पे सर्च नहीं करेगा। जहां पे उसको ये फाइल मिल जाती है डॉट क्लास फाइल, वहीं से वो जेवीएम में लोड कर लेता है फाइल। ठीक है, अगर तीनों लोडर में भी उसको फाइल नहीं मिली, तो ही इन दोनों में से एक आपको एक्सेप्शन या एरर आ सकता है। क्लियर? इतना ही मैंने। यस मैम। ओके, सो लोडिंग कंसेप्ट पूरी क्लियर हो चुकी है। लोडिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर जेवीएम आर्किटेक्चर। आपका प्रोग्राम स्टार्ट, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले लोडिंग आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप लोडिंग हमारा कंप्लीट हुआ। इन तीनों में से कहीं से तो हमारी डॉट क्लास फाइल लोड हो चुकी है। लोडिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका लिंकिंग। लिंकिंग में 3 स्टेप्स होते हैं, 3 एक्टिविटीज होते हैं। सबसे पहले वेरीफाई, सेकेंड वन इज प्रिपेयर एंड थर्ड वन इज रिजॉल्व। वेरीफाई, प्रिपेयर एंड रिजॉल्व। ठीक है, ये 3 ऑपरेशंस होते हैं लिंकिंग पार्ट में। सेकेंड सेक्शन है, सेकेंड एक्टिविटी है, आप बोल सकते हो क्लास लोडर सबसिस्टम में। ठीक है, तो लिंकिंग में क्या क्या होता है एक्चुअली? फर्स्ट स्टेप वेरीफाई। वेरीफाई क्या होता है? वेरीफाई मतलब जो हमारे डॉट क्लास फाइल लोड हुई है, जो बाइट कोड वेरीफायर होता है उसमें, वो वेरीफाई करेगा आपकी जनरेटेड बाइट कोड जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर ये वेरिफिकेशन फेल हुआ तो आपको वेरिफिकेशन एरर आएगा। अगर ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी डॉट क्लास फाइल जाएगी। ठीक है, दैट इज प्रिपेयर। ठीक है, वेरिफिकेशन होता है सिर्फ जो बाइट कोड जनरेट होता है उसका वेरिफिकेशन लिंकिंग में सबसे पहले स्टेप में होता है, वेरीफाई में। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद प्रिपरेशन होता है। क्या प्रिपेयर करते हैं? तो हमारे इसमें प्रोग्राम में जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे उसको मेमोरी एलोकेशन होगा, उसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट होंगी। अभी ये स्टैटिक वेरिएबल्स वगैरह क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रिपेयर स्टेट में सारे स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है एंड डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट किया जाता है उन वेरिएबल्स के लिए। ये कंप्लीट होने के बाद थर्ड आता है आपका स्टेप, दैट इज रिजॉल्व। रिजॉल्व में क्या होता है? ये आपका एक्चुअली प्रोसेस होता है जहां पे सिंबॉलिक मेमोरी रेफरेंसेस जो है वो रिप्लेस होते हैं ओरिजिनल रेफरेंसेस के रेफरेंस के साथ,
फ्रॉम मेथड एरिया। तो एक्चुअली ये सिंबॉलिक रेफरेंसेस क्या होते हैं, मतलब हम एक मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। तो मेथड कॉल करने के बाद वो मेथड कॉल की जगह पे आपका पूरा मेथड एज इट इज लाइन बाय लाइन वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। वो मैं आपको डिटेल में प्रोग्राम करते टाइम बताऊंगी, ठीक है। तो ये रिजॉल्व स्टेट है जहाँ पे रिप्लेसिंग सिंबॉलिक रेफरेंसेस फ्रॉम टाइप विथ डायरेक्ट रेफरेंसेस ये होता है। इट इज डन बाय सर्चिंग इनटू मेथड एरिया टू लोकेट द रेफरेंस्ड एंटिटी। ये मेथड एरिया में सर्च करेगा एंड जो एंटिटी है उसको लोकेट करके रेफरेंस करके सारे सिंबॉलिक रेफरेंसेस रिप्लेस होंगे डायरेक्ट रेफरेंसेस के साथ, ठीक है। ये रिजॉल्व हो गया। तो ये 3 स्टेप्स है लिंकिंग में। थर्ड एंड द लास्ट इन द क्लास ऑर्डर सबसिस्टम इज इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एक ही प्रोसेस होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या कि जो ये फाइनल फेज है आपका क्लास लोडिंग का, ठीक है। यहाँ पे सारे स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन प्रिपेयर में हुए थे, डिफॉल्ट वैल्यूज भी उसको सेट किए गए थे। ये सारे स्टैटिक वेरिएबल्स को ओरिजिनल वैल्यूज के साथ वैल्यूज दिए जाएंगे, सेव किए जाएंगे एंड जो स्टैटिक ब्लॉक्स रहेंगे उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है। अगर आपके प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल्स वगैरह नहीं है, मेन मेथड तो रहता ही है, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक वगैरह नहीं है, तो ये थोड़ा सा पार्ट स्किप हो सकता है, बट मेन मेथड स्टैटिक होता है उसको तो हम यहाँ पे यूज होता ही है। बट अगर आपके प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं है तो ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे आपके डॉट क्लास फाइल आके नेक्स्ट स्टेप में जाएगी। बट इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में फाइनल फेज होता है जहाँ पे सारे स्टैटिक वेरिएबल्स को ओरिजिनल वैल्यूज असाइन किए जाते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज दिए थे, उसकी जगह पे अभी ओरिजिनल वैल्यूज असाइन किए जाएंगे एंड अगर आपके प्रोग्राम में कोई स्टैटिक ब्लॉक है तो उसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे मेन क्लास लोडर सबसिस्टम कंप्लीट, ठीक है। तो 3 फेजेस में आपका क्लास लोडर सबसिस्टम वर्क किया, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन। लोडिंग में 3 पार्ट्स थे, लिंकिंग में 3 पार्ट्स थे, 3 स्टेप्स थे एंड इनिशियलाइजेशन में एक ही इनिशियलाइजेशन था। तो ये पूरा आपका क्लास लोडर सबसिस्टम वर्क करने के बाद, आपके क्लास फाइल लोड होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद, मेमोरी स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन वैल्यूज देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट आपका आता है रन टाइम डेटा एरियाज। रन टाइम डेटा एरिया जो पार्ट है जहाँ पे आपको सारे क्लास फाइल में जो भी वेरिएबल्स हमने लिखे हैं, जो भी मेथड्स हम लिखते हैं, उसके लिए मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। रन टाइम डेटा एरियाज में मेमोरी एलोकेशन होता है। तो ये बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेथड एरिया, सेकेंड इज हिप एरिया, इसको हम हिप मेमोरी भी बोलते हैं, मेथड एरिया को मेथड में एरिया मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड इज स्टैक एरिया, फोर्थ इज पीसी रजिस्टर्स एंड लास्ट वन इज नेटिव मेथड स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मेथड एरिया में क्या क्या डेटा स्टोर होता है, हिप एरिया में क्या क्या डेटा स्टोर होता है, या फिर हिप मेमोरी कैसे वर्क करती है। तो उसके लिए आपको ये जेवीएम आर्किटेक्चर में रन टाइम डेटा एरियाज मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ योर जेवीएम आर्किटेक्चर रन टाइम डेटा एरियाज, जैसे मैंने बोला ये 5 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है मेथड एरिया। तो मेथड एरिया में एक्चुअली डेटा स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, यहाँ पे क्लास लेवल इंफॉर्मेशन, क्लास लेवल डेटा स्टोर होता है, जैसे कि क्लास नेम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था वही, जैसे कि क्लास नेम, इसका इमीडिएट पेरेंट होगा कोई तो, मेथड्स एंड वेरिएबल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टैटिक वेरिएबल्स। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे हुई थी, वो मेमोरी एलोकेशन कहाँ पे हुई, तो वो मेथड एरिया में हो गई, ठीक है। मेथड एरिया में ही उसको मेमोरी स्टोर करने के लिए दी गई एंड वहां पे ही आपका स्टैटिक वेरिएबल स्टोर हो गए। तो ये एक ही मेथड एरिया होता है पर जेवीएम। पर जेवीएम ओनली वन मेथड एरिया, ठीक है। एंड ये शेयर्ड रिसोर्स होता है। शेयर्ड मतलब सारे जितने भी एप्लीकेशंस आप लिखोगे, जितने भी एप्लीकेशंस आप डेवलप करोगे,
उनके लिए सब जगह सारे के लिए मेथड एरिया एक ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड वन इज हिप एरिया। ये प्रोग्राम जब हम करेंगे, ये एक एक पॉइंट्स जब हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, मेथड्स क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे लिखने हैं, क्या करने हैं, तब आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए ध्यान में रखो कि मेथड एरिया जो है सारी क्लास लेवल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, क्लास नेम, इमीडिएट पेरेंट नेम, वेरिएबल्स, मेथड्स इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। एंड ये वन मेथड एरिया ही होता है पर जेवीएम, ये शेयर्ड रिसोर्स है। सेकेंड वन इज हिप एरिया। हिप एरिया में जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं कोई भी क्लास का, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है एंड उसके करस्पॉन्डिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स, एरेज यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जब हम क्लास क्रिएट करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तब आपको ये डिटेल में समझ में आएगा कि इंस्टेंस वेरिएबल्स वगैरह क्या है, एरेज वगैरह, ये सब कुछ आपके हिप एरिया में स्टोर होते हैं। देयर इज ऑल्सो वन हिप एरिया पर जेवीएम, ये भी एक ही होता है जेवीएम में, हर एक जेवीएम में एक ही होता है हिप एरिया। बट ये मेथड एरिया एंड हिप एरिया शेयर मेमोरी फॉर मल्टीपल थ्रेड्स, ये भी शेयर्ड रिसोर्स है। बट डेटा स्टोर्ड इज नॉट थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ क्यों नहीं है वो थ्रेडिंग के टाइम में बता दिया, ठीक है। तो मेमोरी, मेथड एरिया एंड हीप एरिया एक एक ही होंगे आपके जेवीएम में, एंड ये शेयर्ड रिसोर्स ही है, इसमें डेटा जो है वो शेयर्ड ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। थर्ड वन इज स्टैक एरिया। तो स्टैक एरिया जो है, स्टैक एरिया जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एक थ्रेड क्रिएट करता है, ठीक है, थ्रेड्स रहते हैं। तो ऐसे आप मल्टीपल थ्रेड्स लिख सकते हो। इस मल्टीपल थ्रेड्स को अलग अलग डेटा और मेमोरी एलोकेशन के लिए हम स्टैक एरिया यूज होता है, ठीक है। तो जेवीएम जब भी कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तब अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट करता है, तो उन थ्रेड्स को सेव करने के लिए ये स्टैक एरिया यूज होता है। इट इज अ सेपरेट रन टाइम स्टैक, ठीक है, सेपरेट रहेगा, हर एक थ्रेड के लिए सेपरेट रहेगा। हर एक मेथड कॉल के लिए एक न्यू एंट्री की जाएगी स्टैक मेमोरी में। कोई भी मेथड जब हम कॉल करते हैं, जैसे कि आपने अभी आपको HTML ही पता है, बाकी प्रोग्रामिंग अगर आपको C वगैरह पता होता तो मेन मेथड वगैरह हम कॉल करते हैं, मेन फंक्शन कॉल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम कोई मेथड्स लिखेंगे, उसको कॉल करेंगे, तो वो मेथड कॉल जब हम करते हैं तो उसकी एंट्री आपकी इस स्टैक मेमोरी में की जाती है, जिसको हम स्टैक फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। सारे लोकल वेरिएबल्स उस फंक्शन में, उस मेथड में जितने भी वेरिएबल्स हमने लिखे हैं, वो लोकल वेरिएबल्स के लिए भी मेमोरी स्टैक मेमोरी में ही क्रिएट होती है, ठीक है। ये स्टैक एरिया थ्रेड सेफ है क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्स नहीं है। हर एक, आपने इस डायग्राम में देखा होगा कि हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेशन हुई है, ठीक है। तो ये स्टैक फ्रेम है। इस स्टैक फ्रेम में क्या क्या होगा, जब कोई मेथड कॉल हम करते हैं तो वो मेथड कॉल आपका स्टैक में एंट्री होगा, उसके जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उस मेथड में, उसके लिए भी मेमोरी एलोकेशन इसी में होगा। तो ये एक थ्रेड 1 का है, तो ये थ्रेड 1 का डेटा थ्रेड 2 एक्सेस नहीं कर सकता, थ्रेड 2 का डेटा थ्रेड 1 एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज वाई ये सारे सेपरेट मेमोरी एलोकेशंस रहेंगे, एंड इसी की वजह से हम इसको स्टैक एरिया को बोलते हैं कि ये थ्रेड सेफ है। बट मेथड एरिया एंड हिप एरिया में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों शेयर्ड रिसोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा है वो शेयर्ड रहेगा, तो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं कि ये थ्रेड सेफ नहीं है, एंड स्टैक एरिया जो है वो आपका थ्रेड सेफ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, स्टैक पे 2 ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, पुश एंड पॉप। कोई भी स्टैक पे 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप, पुश मतलब डेटा को इंसर्ट करना होता है, ठीक है, इंसर्ट डेटा इनटू स्टैक, एंड पॉप मतलब डिलीट डेटा फ्रॉम स्टैक, ठीक है। सो ये 2 ऑपरेशंस होते हैं एवरी टाइम जब भी जो थ्रेड करंटली एग्जीक्यूशन में है, तो उस एग्जीक्यूशन थ्रेड का एसोसिएटेड जो भी स्टैक होगा, सपोज अभी हमारा थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन में है, ठीक है, तो इस थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन में है तो इसको, इसका जो एसोसिएटेड स्टैक है इसको हम रन टाइम स्टैक बोलते हैं। इट इज नोन एज रन टाइम स्टैक।
इट इज नोन एज रन टाइम स्टैक। सो जो भी मेथड कॉल इस पर्टिकुलर थ्रेड ने किया है, सपोज यहाँ पे इस थ्रेड 1 में मैं कॉल कर रही हूँ ऐड मेथड, ठीक है, इस थ्रेड 1 में हम ऐड मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो जब मैंने ऐड मेथड को कॉल किया तो इस थ्रेड 1 के लिए जो भी एसोसिएटेड स्टैक है, जो मेमोरी है, यहाँ पे इस ऐड मेथड की एंट्री हो गई, ठीक है। या फिर हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं या फिर कंप्यूटेशंस करते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा। इस ऐड मेथड में सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है, जिसको मैंने वैल्यूज दिए हैं। ए वेरिएबल है एंड बी वेरिएबल है, जिसको मैंने वैल्यूज दिए हैं। तो ये मैं इस दो वेरिएबल्स के लिए भी मेमोरी मेरी यहीं पे स्टोर होगी। ये दोनों वेरिएबल्स का भी एंट्री मेरे इसी स्टैक में होगा, रन टाइम स्टैक में, ठीक है। तो ये सबसे पहले पुश ऑपरेशन करेगा, पहले मेथड कॉल को, दैट इज पहला आपका पुश होगा, इंसर्ट होगा स्टैक में ऐड मेथड कॉल। उसके बाद पुश होंगे आपके दो वेरिएबल उसके वैल्यू के साथ, जहाँ पे ये डेटा पुश होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा आपका रन टाइम स्टैक में पुश होते जाता है, डेटा स्टोर होते जाता है रन टाइम स्टैक में। तो ये ऐड मेथड जो है, या फिर ये ए वेरिएबल बी वेरिएबल्स जो है जिसको मैंने वैल्यूज दिए हैं, ये थ्रेड टू एक्सेस नहीं कर सकता, इसको हम लिंक नहीं कर सकते दोनों को, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये एक बार थ्रेड आपका एग्जीक्यूशन, मतलब ये एडिशन का प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, एडिशन हो गई, तो जो भी पार्ट है स्टैक में कंप्लीट होने के बाद ये पूरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। पूरा डेटा जो हमने थ्रेड के एग्जीक्यूशन में जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई थी, जितने भी कॉल्स किए गए थे, जो भी आपके स्टैक में पुश किए गए थे, वो सारे पॉप करके आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी किया जाएगा, मतलब सब कुछ डिलीट हो जाएगा, रिस्पेक्टिव स्टैक आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सारे कॉल्स थ्रेड ने कंप्लीट करने के बाद स्टैक एम्प्टी होता है, एंड वो स्टैक एसोसिएटेड स्टैक जो है वो फ्री होता है, डिलीट होता है, ठीक है। तो जब भी आपका थ्रेड टर्मिनेट होगा, जेवीएम इस पर्टिकुलर थ्रेड के एसोसिएटेड स्टैक को डिलीट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो मेमोरी है ये टेम्पररी मेमोरी आप बोल सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक इसको डेटा जब चाहिए तब आप स्टोर कर सकते हो, जब चाहिए तब आप इसको, आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। सो इसको ऑटोमेटिक होता है, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। The stack that stores data associated with the thread exclusively available only to the specific thread and unaccessible to the other threads. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कि थ्रेड 1 का डेटा हम थ्रेड 2 में एक्सेस नहीं कर सकते, थ्रेड 2 का थ्रेड n में नहीं कर सकते, थ्रेड n का थ्रेड 1 में नहीं कर सकते, कौन से भी डेटा को हम कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वही थ्रेड उसको एक्सेस कर सकता है। एंड इसी की वजह से जो डेटा हम थ्रेड्स मतलब स्टैक एरिया में स्टोर करते हैं वो आपका थ्रेड सेफ रहता है। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी एक्चुअली कि स्टैक एरिया में जो भी मेमोरी एलोकेशंस होते हैं इन थ्रेड्स के लिए वो कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में हो, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ये आपका हो गया स्टैक एरिया। इस स्टैक एरिया में कोई 3-4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। The stack frame is divided into 3 sub entities. सबसे पहले आपका लोकल वेरिएबल एरे है, जिसमें उस पर्टिकुलर मेथड में जितने भी लोकल वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेशन होता है, उसको हम लोकल वेरिएबल एरे बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो वहां पे स्टोर होंगे, जैसे कि मैंने अभी किया था, जो ए वेरिएबल है उसको एक वैल्यू दी गई थी, बी वेरिएबल है उसको एक वैल्यू दी गई थी, तो ये वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए थे मेथड ऐड में। तो ये इन दोनों वेरिएबल्स के लिए लोकल वेरिएबल एरे में मुझे मेमोरी एलोकेट होगी एंड डेटा स्टोर होगा। सेकेंड है ऑपरेंड स्टैक। ऑपरेंड स्टैक में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मेमोरी एलोकेशन होती है रन टाइम वर्कस्पेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मतलब क्या कि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है a+b का, तो ए वेरिएबल की वैल्यू मुझे यहाँ से लेनी पड़ेगी, प्लस करना पड़ेगा, बी वेरिएबल की वैल्यू लेनी पड़ेगी,
इन दोनों का कैलकुलेशन करना है तो वो ऑपरेंड स्टैक में कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। थर्ड वन इज फ्रेम डेटा। फ्रेम डेटा में सारे सिंबल्स जो है वो मेथड में जितने भी सिंबल्स हम यूज करते हैं उसको यूज किया जाएगा। एंड अगर कोई कांस्टेंट वैल्यूज है, मेथड कोई डेटा रिटर्न कर रहा है तो वो डेटा इस फ्रेम डेटा के थ्रू रिटर्न होगा। ठीक है, सो ऑल सिंबल्स करस्पॉन्डिंग टू अ मेथड इट्स स्टोर्ड हियर, इट कंटेन्स कांस्टेंट डेटा वैल्यूज एंड मेथड रिटर्न वैल्यूज। कोई मेथड अगर रिटर्न कर रहा है कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो आपके फ्रेम डेटा में स्टोर होगा। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो कैच ब्लॉक will be catch block information will be maintained in the frame data। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शंस क्या होते हैं उसको हैंडल क्या करना है, कैच ब्लॉक क्या है वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ योर रन टाइम डेटा एरिया, दैट इज स्टैक एरिया। क्लियर है यहाँ तक? मेथड एरिया, हीप एरिया एंड स्टैक एरिया क्लियर है? यस मैम, यस मैम। सो देर आर टू मोर पार्ट्स ऑफ दिस। फर्स्ट जो फोर्थ पार्ट है दैट इज पीसी रजिस्टर्स। ये पीसी रजिस्टर्स क्या होते हैं? तो जब भी कोई थ्रेड है एग्जीक्यूशन में आता है, ठीक है, तो वो एक सेपरेट पीसी रजिस्टर्स यूज करता है। ठीक है, सो ईच थ्रेड विल हैव सेपरेट पीसी रजिस्टर्स टू होल्ड एड्रेस ऑफ करंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। एड्रेस ऑफ करंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन मतलब जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो प्रोग्राम आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब मैंने ये पहले वैल्यूज दिए, उसके बाद मैंने a+b स्टेटमेंट लिखा, राइट, तो मेरा एग्जीक्यूशन ऐसे ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले a+b एग्जीक्यूट हो रहा है फिर a एंड b की वैल्यू सेट होगी। नो, आपका प्रोग्राम कभी भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। जिस सीक्वेंस में आप प्रोग्राम लिखते हो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। तो पहले आपके वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन उसकी वैल्यू स्टोर करने के बाद ही a+b ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो करंट इंस्ट्रक्शन है मतलब a+b, ये मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये ऑपरेशन कहीं पे भी तो लिखा होगा, राइट। कौन से तो स्टेटमेंट, कौन से तो मेमोरी लोकेशन में ये इंस्ट्रक्शन लिखी गई होगी। हर एक के लिए आपको मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है, तो वो हर एक लाइन के लिए मेमोरी एलोकेशन हो तो वो लाइन का एड्रेस जिस कौन से मेमोरी पे ये लिखा गया है उसका एड्रेस इस पीसी रजिस्टर में स्टोर होता है। Once the instruction is executed, the PC register will be updated with the next instruction। मतलब a+b मुझे एग्जीक्यूट करके कैलकुलेशन हो गया, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसके बाद जो भी मैंने लाइन लिखी है कोड में उसका एड्रेस यहाँ पे अपडेट होगा पीसी रजिस्टर में। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जीक्यूशन जो है वो लाइन बाय लाइन अच्छे से होना चाहिए उसके लिए होता है। लास्ट part of this runtime data area is native method stacks। तो ये native method stack क्या करता है, native method information store करता है for every thread a separate native method stack will be created। native method मतलब जो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर रिलेटेड होगा, मतलब कि अगर कोई प्रोग्राम आप कर रहे हो, वो एप्लीकेशन है आपका, इस एप्लीकेशन में आपने विंडोज पे डेवलप किया है एंड सेम एप्लीकेशन आपको लिनक्स पे भी एग्जीक्यूट करना है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग कुछ तो चाहिए होगा कोड, तो वो मेथड सिर्फ और सिर्फ लिनक्स के लिए आपको लिखनी है। लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ही एग्जीक्यूट होने चाहिए। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मेथड जब हमें लिखनी होती है तब हम नेटिव मेथड लिखते हैं, ठीक है, एंड उसको हम नेटिव मेथड बोलते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगी, या फिर अगर आपने विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए लिखी है तो सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए ही एग्जीक्यूट होगी। ऐसे नेटिव मेथड स्टैक्स अलग से मेंटेन होता है जो सिर्फ और सिर्फ नेटिव मेथड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, एंड ये हर एक थ्रेड के लिए सेपरेट नेटिव मेथड स्टैक क्रिएट होता है जैसे स्टैक एरिया में होता है वैसे ही। क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। ओके, सो आज के लिए तो हम इतना ही देखेंगे क्योंकि अगर मैंने नेक्स्ट स्टार्ट किया तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने 2 पार्ट्स देखे जेवीएम आर्किटेक्चर में जो इम्पोर्टेंट है, क्लास लोडर सबसिस्टम जिसमें 3 सब पार्ट्स है, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन। सेकेंड वन हमने देखा रन टाइम डेटा एरियाज। रन टाइम डेटा एरियाज में आपको
मेमोरी एलोकेशंस होती है अलग अलग चीजों के लिए। मेथड एरिया होता है, हीप एरिया होता है, स्टैक एरिया होता है, पीसी रजिस्टर्स होते हैं एंड नेटिव मेथड स्टैक होता है। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारा कवर हो चुका है। रिमेनिंग द थर्ड पार्ट ऑफ योर जेवीएम आर्किटेक्चर इज एग्जीक्यूशन इंजन। यहाँ पे 3 सब पार्ट्स है, इंटरप्रेटर, जिट कंपाइलर, प्रोफाइलर इसी में आता है। ठीक है, एंड गार्बेज कलेक्शन। तो एग्जीक्यूशन इंजन एंड ये दो जो है ये नेटिव मेथड रिलेटेड ही है। जैसे ये नेटिव मेथड स्टैक हमने देखा, तो ये नेटिव मेथड मतलब हार्डवेयर के डिपेंडेंट जो भी मेथड्स आप लिखते हो उसके लिए ही है ये। तो ये 2 पार्ट्स जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ लो, सेम पार्ट्स है। ठीक है, तो इस एक बार आपको ये समझ में आ गया कि डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कौन सा डेटा किस जगह पे स्टोर होता है, तो आपको प्रोग्राम करने के टाइम आसानी से समझ में आ जाएगा और इंटरव्यू में भी आपको अच्छे से आप बता सकोगे। ठीक है, ओके ओके। हाँ अच्छा, बाय द वे मैम, हाँ बोलो। फुल स्टैक जावा में कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं? जावा में, जावा एक लैंग्वेज है। जावा में कौन सी लैंग्वेज होते हैं मतलब? ना मतलब आई मीन फुल स्टैक में जावा के साथ और कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है? मेन फोकस तो आपका जावा में ही रहेगा। जावा के अलग अलग टेक्नोलॉजीज होते हैं, जावा तो एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, इसमें आपका कोर जावा रहेगा, फुल स्टैक में दूसरे रहते हैं आपके सर्वर साइड के लिए, मतलब एडवांस पार्ट में टेक्नोलॉजीज रहते हैं जैसे कि सर्वलेट्स, जेएसपीज, एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह। ठीक है, एंड फिर आपके फ्रेमवर्क्स रहते हैं, जावा के फ्रेमवर्क्स है, स्प्रिंग, हाइबरनेट, वो सारे आपके रहेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो ये सारे जावा में ही है, सिर्फ टेक्नोलॉजीज आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये सारे जावा में ही लिखे गए हैं और जावा ही हम यूज करेंगे। ओके, ओके ओके thank you, Piyush. So we will end our session for today here and we will continue in the next week. Thank you. ओके मैम, थैंक यू।